मैं निवेदन करना चाहूँगी मैम नसरीन से कि मैडम युविका पनवार असिस्टेंट डायरेक्टर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी मैं रिक्वेस्ट मैडम नसरीन me to kindly present Kata's to Director Health Duty the Dr. Motu Projiji. I request Marley to kindly present Kata's to Mr. Mohammed Bashir, retired Assistant Controller Drug. I request Marley to kindly present Kata's to Chief Medical Officer Dr. Lorna. जैसे कि हमारे परंपरा के अनुसार शुभ कार्य की शुरुआत हमेशा ईश्वर के नाम के साथ की जाती है। शुभ कार्य से पहले हमेशा ईश्वर का नाम लेते हैं। मेरी स्लाइड brings up the prices of the drugs, and at the same time it's also having a role in collecting information about availability and accessibility of affordable medicines, and having a role in monitoring the violations in the prices of the drugs fixed by the government. So, in के अंदर ये दो उसके डिस्प्ले ले लिया। एक उन्होंने 19 ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एसेंशियल प्रोडक्ट के अंदर उन्होंने नोटिफाई किया। दूसरा उन्होंने NPP नेशनल प्राइस नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन इंडिया की काउंसिल की जिस भूमिका से बताया। मैं ऑलरेडी इस बारे में इतने नहीं जाऊंगा NPP कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो लिंकेज यहाँ पर है वो इसको मुझसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। नेक्स्ट अब 1995 ये पॉइंट बनाया था। 2000 के अंदर इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन एक धूम मचा रही थी। कंपटीशन जो है बहुत बढ़ गया था। उसके बाद हम लोग ने मूव किया नोबरा डिस्ट्रिक्ट में। नोबरा जहाँ पे SGH है वहाँ पे हम लोगों ने गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के साथ किया था ऑन 1st of December 2022। नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस हॉल में किया था विद SDM सर, हमारे वहाँ पे चीफ गेस्ट थे। फिर हम लोगों ने खलसे ब्लॉक में किया था, वहाँ पे गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस हॉल था। वहाँ पे हम लोगों ने जो वीडियोस थे वहाँ पे सबके साथ हम लोगों ने ये अवेयरनेस शुरू किया था। नेक्स्ट हम लोगों ने खलसी में CHC जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे भी ये हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया विद फार्मासिस्ट, केमिस्ट एंड डॉक्टर्स के साथ। उसके बाद जब जन औषधि दिवस चला हमारे यहाँ पे 1 वीक का, उस जन औषधि दिवस के टाइम पे हम लोगों ने एक अवेयरनेस कैंप किया था SNM हॉस्पिटल्स में। नेक्स्ट हम लोगों ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर ठिकसे में ऑर्गेनाइज किया है। That we should have a clear vision and roadmap to achieve the sustainable health for all. The National Pharmaceutical Pricing Authority is mandated with their task of fixing the ceiling prices enlisted in the National List of Essential Medicines, which is adopted as Schedule 1 of DPCO. For today's topic, I would like to divide the things into two parts. One is National List of Essential Medicines, and second is fixing of the prices, including ceiling prices. So starting with National List of Essential Medicines, this is a list of essential medicines like life-saving drugs that is notified by the Ministry of Health and Family Welfare, which is then adopted as the National List of Essential Medicines is made considering certain factors into consideration. For example, the efficacy of drugs, whether there is other alternative available or not, the prices of the other alternative. All these factors are taken into considerations and then the list is prepared. If I take into account the NLM 22, there were 34 medicines that were added to it and 26 were deleted to arrive to NLM 22. The salient features of NLM 22 were the 4 anti-cancer medicines were included this time, namely the bendamustine, linaclotide, leuprolide,
oxytocin. Looking at the increasing burden of the lifestyle diseases like diabetes and cardiovascular diseases, this time insulin glargine is also added in the NLM 22. Like people were earlier using insulin, but this time we have added the insulin glargine also in the schedule, and NPPA has fixed the price for that also. Further, looking at the TB burden in the disease, the major TB drug, that is bedaquiline, is also added now. Earlier, under NLM 2015, NPPA had fixed the ceiling prices of 890 formulations, which resulted in the annual savings of around 2,643 crores to the patients. सोर्स यूनिट के सभी कार्यकर्ता और यहाँ पे उपस्थित हमारे पूरे फार्मेसी एसोसिएशन के लोग और यहाँ पे उपस्थित अन्य मेहमान और हमारे मीडिया भाई बंधु सबको जुड़े। सबसे पहले तो मैं ये लद्दाख प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट की पूरे टीम को बधाई देना चाहूँगा और कि ऑफिशियली ये मैं समझता हूँ आज इस्टाब्लिश हुआ है, तो आपकी एक्टिविटीज़ बीते हुए दिनों में काफ़ी हो चुका है। बहुत बहुत बधाई और नीड ऑफ द आवर इस तरह के जो है प्राइस रेगुलेशन बॉडीज़ की सख्त ज़रूरत पड़ता है और स्पेशली आज के दिनों में जब मटेरियलिस्टिक जो है लोगों को डिस्टर्ब करते हैं और उसके चलते चलते जो है लालच भी बढ़ता है, तो ऐसे समय में जो है इस तरह की एक रेगुलेशन बॉडी की सख्त ज़रूरत पड़ता है। जहाँ तक जो हमारे जो पूरे NPPA का सवाल है, ये प्राइस रेगुलेशन की बात जब हम करते हैं तो अक्सर जो है मैन्युफैक्चर के ऊपर जो है लायबिलिटी जाता है, क्योंकि प्राइस डिटरमाइन वही करते हैं और दुकानों पे जो है चीज़ें जो है पहले से ही जो है डिटरमाइन प्राइस होते हैं उसके ज़रिए आता है। तो कोई भी केमिस्ट के पास आते हैं तो प्राइस ऑलरेडी फिक्स हो चुका होते हैं और वो प्रिंटेड होते हैं। तो इस तरह के जो रेगुलेशन, इस तरह के मॉनिटरिंग जो है जनरली फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ होता है, लेकिन एक नया चीज़ें जो है आज मुझे जानने को मिला है कि जो रिटेलर है वो भी जो है और चार्जिंग करते हैं, तो जो कि वेरी अनफॉर्चुनेट। और लद्दाख जैसे जगहों पे अगर 35 केसेस को रिपोर्ट हुआ है तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी दुख की बात तो कुछ नहीं है। ओके, बट वी डोंट हैव अ मैन्युफैक्चर हियर, but the company is sending और प्राइस मेडिसिन टू हियर, तो आता कैसे है इस मार्केट? सर वो लेवल पर डाल के आते हैं, तो इसीलिए प्रीलिमिनरी टीम कंडक्ट सर्विस ये जो लेवल पर एड्रेस दिया है और इसीलिए ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे केमिस्ट को सब बताया जाता है कि आप चेक करना दिस एड जो दवा आपके पास है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह की चीज़ें हो रहा है तो मैं समझता हूँ फिर हमारे जो फार्मासिस्ट भाई बंधु हैं वो भी जो है आपका एक पार्ट बन गया कि पूरे प्राइस को रेगुलेट करने के लिए। तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम MRP के ऊपर चार्ज करते हैं तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही संगीन जो है वो तो मैं फिर आपको वायलेशन ऑफ जो भी आपके जो कोड ऑफ कंडक्ट जो होते हैं रूल्स उसका नहीं मानूंगा, साथ ही साथ वो तो क्रिमिनल वायलेशन भी होता है। तो ऐसे चीज़ें तो शायद वही मैं भी बड़ा हैरान रह गया था कि लद्दाख में भी जो है अगर इस तरह के माल प्रैक्टिस करते हैं तो उससे बड़ी दुख की बात कुछ नहीं हो सकता। बट जानकारी मिला कि ये जो है वायलेशन जो है वहीं से होके आते हैं और हमारे जो है लोगों के दुकानों में पहुंच जाता है जो ऑलरेडी ओवर चार्ज होते हैं। तो ऐसे में जो है मैं समझता हूँ आप भी जो है एक डायरेक्ट एक हेल्पिंग हैंड जो हमारे जो फार्मासिस्ट जो केमिस्ट के लोग हैं वो बन सकता है कि हर साल जो है अगर पैरिस कोई भी दवाई आप लाते होंगे
तो उनमें प्राइस में कितना वेरिएशन हो रहा है और परमिसिबल लिमिट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा चेक हो जाएगा। बाकी मेरे ख्याल से जो है मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और स्प्यूरियस भी कहीं आता तो नहीं है, इसका भी जो है हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई ब्रांड ऐसे भी आते हैं जो अप्रूव नहीं होता है, तो ऐसे भी मार्केट में बहुत सारे दवाई आते हैं, तो उसको भी आप लोगों को मॉनिटर करना चाहिए, उसको भी चेक करना चाहिए। और साथ ही साथ जो है मैं समझता हूँ जैसे अभी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो भाई लोग हैं जो दवाई बेचते हैं कि बहुत सारे ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होते हैं, तो ऐसे ड्रग्स जब भी आप देते हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें कोई ऐसा पोटेंशियल तो नहीं है कि वो ड्रग एब्यूज़ के तौर पे जो है इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को भी अवॉइड करें, एक इथिक्स को आप मेंटेन करें। और बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल जिसपे जो है ड्रग एब्यूज़ होने का खतरा होता है, ऐसे ड्रग्स को जो है आप ओवर द काउंटर ना दें जब तक जो है प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर्स ना हो।